where you are and what you're going to or what you'll be required to do is important to understand what you should wear that day or how you should prepare for it. The image का मतलब है कि आपका इम्प्रेशन सामने वाले पे क्या पड़ रहा है, राइट? इसीलिए आज के ज़माने में अपना ब्रांड, कैलकुलेटेड ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार हम जो नहीं चाहते हैं वो या तो लोग देख लेते हैं या समझ लेते हैं. ये when we talk about the personalities, तो psychology में it is very well defined. There are 400 types of personalities. Out of which there are very few personalities out there. तो आपकी पर्सनैलिटी आपके वो हिस्से हैं, राइट, जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. यू विल अंडरस्टैंड दैट ये इमेज जो है ये जिंदगी भर आपको किसी न किसी तरह इट विल कीप बेनिफिटिंग यू. तो आपके जो कपड़े होते हैं, अगेन आपकी खुद की पर्सनालिटी और आपके जॉब को साथ में लाए बांध सकें ऐसे होने चाहिए. सिंपल रूल्स ये हैं दैट आप पहले तो एक थोड़ा कलर एनालिसिस करिए, समझिए कि आपका स्किन के ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं. ब्रांड का एस्थेटिक और आपका एज, आपका रोल एंड गोल इन लाइफ, आपका बॉडी, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं. आप जैसी जॉब चाहते हैं आपको वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तब आपको लोग उस जॉब में एनविजन कर पाएंगे और फिर आपको शायद आगे जाकर के उतना एलिवेशन मिलेगा. So, hello everyone. Thank you so much for joining for this wonderful podcast. Today we will be discussing about image building, branding, self-branding, and I would request all the viewers to please subscribe to this channel and keep watching all the podcasts there. So today we have an amazing guest with us, Miss Sandhya Anantani, and she is an image consultant and a self-branding expert and a corporate trainer with more than 15 years of experience. So Sandhya ji, thank you so much for taking out time and coming for this podcast. Thank you, Pankaj ji. This has been long in the making and finally we get to sit and have this discussion. So I remember the long conversation with you over a phone for this podcast, and finally we are here. Right, yes. Yeah. So we will do this podcast in English, Hindi and English both. Absolutely. So that all the audience will be going to benefit out of it. Definitely. Yeah. तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सेल्फ ब्रांडिंग होती क्या है या इमेज बिल्डिंग होती क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सी, इमेज का मतलब है कि आपका इम्प्रेशन सामने वाले पे क्या पड़ रहा है, राइट? अब की दुनिया तो आप जानते ही हैं, आधा टाइम हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होते हैं, लोग हमें कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं. इसीलिए आज के ज़माने में अपना ब्रांड, कैलकुलेटेड ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार हम जो नहीं चाहते हैं वो या तो लोग देख लेते हैं या समझ लेते हैं. सो इसीलिए अपनी ब्रांड इस तरह से एक कैलकुलेटेड तरीके से प्रेजेंट की जाए जिससे हमारी टारगेट ऑडियंस हमसे और ज़्यादा अच्छी तरह एंगेज हो सके, हम पर विश्वास कर सके, हम शायद उन्हें जिस तरह इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उस तरह हम उनसे इन्फ्लुएंस कर सकें. इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग इस वक्त बहुत ज़रूरी है. एंड कोई भी इंसान अब सिर्फ अपने घर की चार दीवारी में या अपने शहर में तो लिमिटेड रहा नहीं है, ये पूरी दुनिया में देखा जा सकता है. इसीलिए पर्सनल ब्रांडिंग एज अ प्रॉपर एक्सरसाइज की काफ़ी ज़रूरत है. Wonderful. So now while you are answering, this question, there is another related question. There are two lives. One life is the life which is called the real life, where people see you on the social media, Instagram, Facebook, YouTube, and all the platforms. Another one is people see you in person. So like for an example, you are going to attend a marriage, you are going to meet, the family functions with someone, or maybe going for the official corporate meet. Is it really different from each other, or someone really need to understand when it comes to the personal the facing people, what a person need to be very very careful, and when it comes to the real life, especially on the social media, how do you see it to it? सी, होता तो है दैट हम लोग बहुत अलग पर्सनैलिटीज होते हैं एक क्लोज्ड ग्रुप में और एक ज़्यादा बड़े ग्रुप में जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं. इसमें से कुछ हमारे कस्टमर हो सकते हैं, कुछ हमारे इन्फ्लुएंस हो सके ऐसे लोग हो सकते हैं, यहाँ के लोग, बाहर के लोग, फैमिली के लोग, दोस्तों का सर्कल. जब सर्कल बहुत बड़ा होता है तो ऑफकोर्स हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग तो हो ही जाती है. कई लोगों की तो बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है, पर डेफिनेटली ये डिफ्रेंसिएशन होना भी चाहिए. हम जो घर पर होते हैं, जैसे हमारे दोस्तों के साथ, बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं, शायद बाहर के वर्ल्ड में हम उस तरह उतनी फ्रीडम के साथ ओपिनियन ना शेयर कर पाएँ, उस फ्रीडम के साथ बैठ ना सकें, उस तरह के कपड़े ना पहन सकें, राइट? विच इज़ वाई
जब भी हम एक लार्जर ऑडियंस को अपील करना चाहते हैं तो थोड़ी हमारी सेंसिबिलिटीज अलग तो होनी चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी भी अलग होती है। आप देखेंगे दैट घर पे कई लोग बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं, हम लोगों को कहते हैं ना अपने घर का राजा है, राइट? पर यही आदमी जब बड़ी सोसाइटी में जाता है, अपने खुद से ज़्यादा बड़े लोगों के बीच में उठता बैठता है, तो यही कई बार बहुत सहमा सा, डरा हुआ सा लगता है। सो ऐसी ब्रांड बनाना या ऐसी पर्सनैलिटी कल्टिवेट करना जो आपके इंटीमेट ग्रुप के साथ भी आपके लिए वर्क करे, आप उसमें छुपे ना रहें, एट द सेम टाइम एक ज़्यादा बड़े ग्रुप के लिए भी वो पर्सनैलिटी अट्रैक्ट हो, वो लोगों को और अपनी तरफ आकर्षित करे ताकि उसके साथ बिजनेस इंटरैक्शन, किसी भी तरह का एक रिलेशनशिप बन सके। सो हाँ, पर्सनैलिटीज़ का अलग होना अच्छा है, ज़रूरी है, बिकॉज़ हम सेम चीज़ हर जगह तो नहीं हो सकते। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। ये व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनैलिटीज़, तो साइकोलॉजी में देयर आर, इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड, देयर आर 400 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, आउट ऑफ व्हिच देयर आर वेरी few personalities are there. Now, when it comes to the reflection on the personalities on the society or maybe the people in and around, इसमें what are the few contributing factors which really helps in it for an individual to establish the personality which they actually wanted to show to others? सो पर्सनैलिटी वैसे तो बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, पर अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में इसको कहूँ तो आपकी पर्सनैलिटी आपके वो हिस्से हैं, राइट? जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपके कपड़े, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसा खुद को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपका कॉन्फिडेंस, आप किस कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाते हैं, कैसे बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, राइट? तीसरा है अगेन, जैसे आप बात करते हैं, आप क्या बोलते हैं, उसमें क्या वजन होता है, कितना नॉलेज आप उसमें लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, आप किस थॉट से आते हैं, राइट? सो ये सारी चीजें जब आती हैं, इसके साथ ऑफ कोर्स थोड़ा सा कैरिज्मा आ गया, थोड़ा सा आपका चाल ढाल आ गई, आपका बात करने का तरीका आ गया, ये सारी जब कंबाइन होती हैं चीजें, तब बनती है किसी की पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल दूं, हर इंडियन ये एग्जाम्पल जानता होगा, शाहरुख खान, राइट? वो दिल्ली का लड़का थिएटर करते करते बॉलीवुड में आता है, फिर वो बहुत सारी फिल्में करता है, धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी उभरती है। इस वक्त जो जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह खुद को प्रेजेंट करते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका इंटेलेक्ट, उनका इमोशनल कनेक्ट अपने ऑडियंस के साथ, जी, वो इतना स्ट्रांग है दैट किसी भी रूम में या कहीं पर भी अगर शाहरुख खान आते हैं या टीवी के स्क्रीन पर भी, हाँ, अगर शाहरुख खान दिखता है तो लोग उसी को देखते हैं, फिर उसके आसपास कौन है वो मैटर नहीं करता है। सो ये होता है पावर पर्सनालिटी का। अब जब इस पर्सनालिटी को हम पर्सनल ब्रांडिंग में ले आते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, आपकी सेंसिबिलिटीज, आप क्या इमोशनल कनेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, क्या इंटेलेक्चुअल कनेक्ट होता है आपका, क्यों आपको लोग सुन रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल आज के सेशन में जी, लोग हमें क्यों सुन रहे हैं, बिकॉज हम शायद कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कहीं उनको क्लिक होगी। ये क्लिक जो है, ये इमोशनल कनेक्ट जो है, ये क्रिएट करता है एक इम्प्रेशन, right? So your lasting impression is based on the connect that you have with people. And that again, with people who have fantastic or good personality, that connect is quicker, faster and long lasting. And there are people who probably come in a room, but then they disappear. People don't really recollect or they don't identify with that person. तो हम कहते हैं कि उनको थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा और विजिबल होने की जरूरत है, राइट? सो visibility creates your impression, and then of course personality adds a lot of value to it. बहुत बढ़िया। तो एक एक बहुत सा पुराना एग्जाम्पल अक्सर सुनने में आता है कि इफ यू रियली वांटेड टू सी योर इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल, गो एंड अटेंड अ मैरिज देयर। तो वो शादी में जब आप जाते हैं तो आप लोगों को ढूंढते हैं या लोग आपको ढूंढते हैं? Right. तो इज इट देयर दैट पीपल आर कमिंग एंड गैदरिंग नियर यू एंड आस्किंग हाउ आर यू डूइंग एंड ऑल दोस थिंग्स? सो प्रोबेबली वो एक इन्फ्लुएंस जो आपका होता है, जैसे आपने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया शाहरुख खान का, तो आप नोटिसेबल हैं at the event or at the place where you are, or you are still in the making or something, or you are noticing someone, so this makes a huge difference on the personality. Absolutely. Yeah.
सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि किस एज से ये स्टार्ट होना चाहिए पर्सनालिटी या इमेज बिल्डिंग. इज देयर एनी पर्टिकुलर थिंग विच विल हेल्प एन इंडिविजुअल टू बिकम अ ओवरऑल पर्सनालिटी? अभी आप विराट कोहली को देखें तो उसका एक अपना एक ट्रेडमार्क है, उसकी जो अभी जो बियर्ड लुक है उसका, वो एक अपना अलग से है. मुझे याद आता है स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग, उनका एक वो ब्लैक कलर की जो जो टी शर्ट है, दे ऑलवेज यूज टू अटेंड. लाइक फॉर एन एग्जांपल टिम कुक, है ना, और दूसरा सुंदर पिचाई. तो इन लोगों को अगर आप देखें तो उनका एक अपना एक अपीयरेंस है, वेल दे कम एंड अटेंड एंड दे कंडक्ट द सेशन और समथिंग. तो कॉर्पोरेट में उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है. डेफिनेट. तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इसके बारे में अटायर के ऊपर अगर कुछ शेयर कर पाएं कि रियली व्हाट रियली मेक्स अ पर्सन डिफरेंट एंड द इन्फ्लुएंशियल वन, तो थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए. सो एज एन इमेज कंसल्टेंट हम हमेशा हम कहते हैं पिलर्स ऑफ योर इमेज आर अपीयरेंस, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन. आप कैसे दिखते हैं, राइट फ्रॉम योर क्लोथ्स टू योर ग्रूमिंग, योर बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका एटिकेट क्या है, आप लोगों के साथ जब बात करते हैं आपका टेम्परामेंट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स आपका कम्युनिकेशन, आप लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किस नॉलेज के बैकग्राउंड को लेकर के आप बात करते हैं, राइट. सो ये 3 चीज़ें तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये किस उम्र से होनी चाहिए? तो जब से हमें समझ में आने लगता है या जब से हम लोगों के आसपास हमारे सर्कल बड़े होने लगते हैं, राइट, तब से ये काफ़ी ज़रूरी है. विच इज़ वाई आई एम वेरी हैप्पी दैट पिछले कुछ सालों से, लाइक यू सेड, कि अहमदाबाद में एज अ ट्रेनर मैं 15 साल से काम कर रही हूँ. बट 10-12 साल से तो मैं देख रही हूँ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पूरा गवर्नमेंट का भी ऑफ कोर्स मैंडेट है दैट करिकुलम में पर्सनैलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. But then educational institutes right from undergraduate has started training their students in areas of personality, communication. They call it pre-placement training, which covers their interview skills and soft skills and all. However, that is the right age where people can start honing these skills, right? उसके पहले तो हम लोग शॉपिंग वगैरह मम्मी पापा के साथ करते हैं या मम्मी पापा के टेस्ट के कपड़ों के पहनते हैं, राइट. बट एज वी ग्रो ओल्डर हमारी पर्सनालिटी, हमारी स्टाइल बनती है, राइट. तो तब से आई थिंक अपीयरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है. बॉडी लैंग्वेज इज समथिंग दैट आई जेन्युइनली वांट पीपल टू वर्क ऑन. मैं आसपास कई लोगों को देखती हूँ जिनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ऑफ होता है. अच्छे पावर पोजीशंस में होते हैं बट दे आर कॉन्स्टेंटली या तो टचिंग देमसेल्व्स, ईदर दे आर टचिंग देमसेल्व्स, कॉन्स्टेंटली सेल्फ करेक्टिंग देमसेल्व्स, or standing in a very awkward way, sitting in a very awkward way. This you will see across platforms also. And a lot of companies that I go training for, the first thing they tell me, madam, इनका body language correct करिए, right? हैं ये लोग power position में या leadership position में, but they look very fragile, they look very timid. So correcting that, your posture and the way you stand and you walk, or the way you do your gestures, your entire body language is very important. ये होनी चाहिए, something that parents can also instill in their children right from a young age, but definitely this should shape better when they are 12 and 14, जब वो teens में आते हैं, right? Because तब वैसे भी हर बच्चे का कॉन्फिडेंस थोड़ा प्लमेट करता है. तो अगर if they knew how to just carry themselves or lift themselves up a little, right, physically, automatically it will have a very positive impact on them, even psychologically. Then of course communication is something that our academic institutes, our people around us, हम जितना देखते हैं, जी. a lot of times I tell people that please actively push your children in debates, in elocution context, in poetry reading, something that makes them come in front of people and speak. Because again, corporates में presentation skills में सबसे ज़्यादा फंबल होता है लोगों के बात करने में, बॉडी लैंग्वेज में, इन बात करने में. पीपीटी तो कोई भी बना सकता है, अब तो पीपीटी चैट जीपीटी पे भी आप बना सकते हैं, बट उसे प्रेजेंट करने की जो कला है, जो आर्ट है, वो बहुत ज़रूरी है, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट some people could start learning in their teens. And image is an investment for life. Right. If you can cultivate a strong, confident image first for yourself within you, that means आपका self worth आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, and then go around in a circle as you climb the corporate ladder or a social ladder. You will understand that ये image जो है, ये जिंदगी भर आपको किसी न किसी तरह it will keep benefiting you. अगर आपने इसे positively cultivate किया है तो it's like a good hobby. I mean, if you have a good hobby, it will keep giving you back for the rest of your life. Right. So image is almost like that. It's something that you cultivate and it will keep benefiting you forever.
बहुत बढ़िया। और एक बड़ा एसोसिएट सा क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग में आ रहा है कि ये जो कॉन्फिडेंस है इन द टू दैट इनबिल्ड दिस कॉन्फिडेंस टू द किड्स, what is the role of a parenting is very much important. राइट। I feel the way the parents talk to the kids, कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये मत करना, ये फिर गलती कर दी, and rather than this giving them something which they are good at, हम्म। right? हम्म। So इसके बारे में कुछ बता सकती हैं आपकी, what are the few small nuances if parents, each and every parents will take care of their kids, तो उनकी जो अपब्रिंगिंग वो उस तरीके से होती है और वो कॉन्फिडेंस एक पर्सनालिटी के रूप में जो निखर के आता है, and everybody is influenced because of their appearance and the confidence. इंटरेस्टिंगली मैं कार में जब आ रही थी तो एक कॉल चल रहा था किसी के साथ, एंड दिस गर्ल हैज़ गॉन ऑन टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एंड मैंने ही ऐसे ही बात करते करते उसे कहा कि बेटा आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, एंड स्ट्रॉन्ग मम्स मेक स्ट्रॉन्ग डॉटर्स, right? So I can see that in you, that how your mom and her strength is now visible in you. So I think I would start like to say and go on from there that अगर आप parents, अगर आप अच्छे habits, अच्छा lifestyle और अच्छा confidence अपने बच्चों के सामने दर्शाते हैं, एक अच्छा behavior दर्शाते हैं, तो वो almost उनके लिए map बन जाता है जिसको वो follow करते हैं, right? There's again a very popular saying that children do what children see. So आप जो जो बच्चे देखते हैं वो करते हैं, जो सुनते हैं वो नहीं करते हैं। सो आपकी भी पहले तो आदतें, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी एबिलिटीज आपको बढ़ानी चाहिए या अच्छे से प्रेजेंट करनी चाहिए, तो आपका बच्चा वो देख करके इंस्पायर हो सके। वन थिंग आई वुड डेफिनेटली टेल मेन एंड विमेन इज दैट, क्योंकि मैं सुनती भी हूँ, देखती भी हूँ, कई मदर्स अपने बच्चों के सामने अपने बारे में कम बोलती हैं या खुद को कम दर्शाती हैं। आई थिंक उससे बच्चों पर बहुत फर्क पड़ता है, सिंपली बिकॉज अगर आपके बच्चे के लिए आप हीरो हैं, राइट, पर अगर एज अ हीरो आप कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों के सामने अपनी कंप्लेन करते रहेंगे या उन्हें कहते रहेंगे दैट आप एक फेलियर हैं, तो उसके लिए तो उसका हीरो फेल हो रहा है रोज, राइट? तो आई थिंक वो बहुत साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुद के बारे में हमेशा बढ़ा चढ़ा के बात करें, बट अपनी क्रिटिसिज्म भी, राइट, खुद से इस तरह करें जिस पर आप काम करके उसे ओवरकम कर सकें, ना कि बच्चों के सामने खुद के बारे में इतना बुरा बोलें कि बच्चों का आप में एंड बाय इफेक्ट खुद में कॉन्फिडेंस कम हो जाए। सो प्लीज कीप योर कमेंट्स अबाउट योर सेल्फ neutral in front of your children. You could be unhappy or dissatisfied with yourself as a person, but you don't need to tell your children that every day. वेरी गुड। तो मुझे अपनी बातें याद आ रही हैं यहाँ पर कि मेरी डॉटर है, शी इज इन क्लास 12th। तो मैं उसको बोलता हूँ कि आई स्टार्टेड माय करियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज। तो कभी कभी स्माइल करती है, बोलती पापा आप कॉलेज में पढ़ाते थे? तो मैं उसको बोलता हूँ हाँ, मैंने व्हेन आई वाज टीचिंग माय स्टूडेंट्स आर स्टिल सम ऑफ देम आर डॉक्टर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसको यकीन नहीं होता। तो मैं उसको बताता हूँ कि मेरे दोस्तों से बात करवाता हूँ जो अभी प्रोफेसर हैं, टीचिंग में हैं। मैं तो टीचिंग में नहीं हूँ, आई चेंज माय लाइन एंड एवरीथिंग। तो जब बात करती है तो उसको समझ में आता है व्हेन दे टेल कि बेटा आपके पापा ने हमको सिखाया है, हमारी क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट आपके पापा होते थे। तो हर पेरेंट्स को फेलियर चीजें तो शेयर करते ही हैं, नॉर्मली वो पिक्चर सामने आती है, लेकिन हाउ यू ओवरकम ऑन द स्ट्रगल्स एंड द हर्डल्स ऑफ योर लाइफ, वो जेन्युइनिटी बहुत जरूरी है शेयर करना। ताकि टाइम चेंज हो रहा है नाउ, मे बी अभी दिस इज अ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। उस समय में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, लेकिन जो भी था उसमें वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ यू आर एबल टू एक्वायर और आपने उसको ओवरकम किया। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी सक्सेसेस जो हैं आपके, ये बच्चों के साथ में हमेशा शेयर करना चाहिए। और ये टाइम होता है लेजर टाइम विद द किड्स। राइट। मॉर्निंग में सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हैं सैटरडे संडे को, अगर मान लो उनके साथ करते हैं तो छोटी छोटी चीजें शेयर कीजिए। रात को अगर मम्मा के पास में बच्चे अगर सो रहे हैं तो वो छोटी छोटी बातें, जब रात को सोते समय छोटी छोटी कहानियां हैं, छोटे स्ट्रगल्स हैं, तो वो बड़ी बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म में एक डिसिप्लिन सेट करते हैं। और हो सकता है कि वो अपब्रिंगिंग में आपके किड्स को वो कॉन्फिडेंस दे पाएं कि मेरे मदर फादर ने ये चीज़ ओवरकम करी है, तो ये तो कुछ नहीं है, मैं कर सकते हैं। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब अच्छा, अब ये बताइए कि संध्या जी की ये जो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि सेल्फ ब्रांडिंग या इमेज बिल्डिंग इन पॉलिटिक्स।
है ना? अभी हम वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनको अगर आप देखें कि मोदी जी का सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो जो उनकी मोदी जैकेट जो फ़ेमस हुँ, हुई बहुत ज़्यादा, और आज अब नेहरू जैकेट लोग नहीं बोलते उनको, अब वो चेंज हो गया, मोदी जी की वाली जो जैकेट वाली बात आ गई है। राइट। अब अगर हम बराक ओबामा का स्टाइल देखें बोलने का, या उनका जो एक अटायर करने का जो ड्रेसिंग सेंस देखें, तो हाउ डज़ इट, अगर मान लो कोई कोई लीडर लीडर है, चाहे कॉर्पोरेट लीडर हो या पॉलिटिक्स वाला लीडर हो, हाउ अ पर्सन कैन शेप अप दिस? बहुत सारे मैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ को देखता हूँ कि वो पोजीशन तो है उनके पास, लेकिन वो करिश्मा नहीं है, जो आपने वर्ड यूज़ किया था, राइट। तो वो कैसे आ सकता है? सी हर कोई हर किसी के जैसे कपड़े नहीं पहन सकता है, राइट? एक पॉलिटिशियन हमेशा फुल सूट में नहीं हो सकता है, राइट? बराक ओबामा कुर्ता पजामा में इंडिया घूम रहा है तो वो उसमें नहीं घूम सकता है, राइट? तो हर किसी का एक पर्सनैलिटी होता है, उसका एक जॉब होता है, उसके कपड़े उस जॉब को और उसकी पर्सनैलिटी को कहीं पे बांधे ऐसे होने चाहिए, राइट? सो हम जैसे देखते हैं कि मोदी जी काफ़ी अप्रोचेबल हमें लीडर लगते हैं, राइट? तो उनका स्टाइल भी कपड़ों का ऐसा है, राइट? इट्स अ शॉर्ट स्लीव हाफ स्लीव कुर्ता, उसके ऊपर एक जैकेट होता है, राइट? एंड अच्छे कलरफुल कुर्ते पहनते हैं बिकॉज वो इंडिया से हैं। वो यूरोप से नहीं है कि हमेशा काले कपड़ों में घूमते रहें, राइट? सो अगेन आपका क्या टारगेट ऑडियंस है, उसके हिसाब से उन्हें क्या एक्सेप्टेबल होगा, क्या कलर पैलेट ठीक रहेगा, क्या कपड़े होने चाहिए, आपका क्या कंफर्ट होना चाहिए उन कपड़ों में, राइट? सो कोई भी पॉलिटिशियन को जिसको फुल सूट की आदत नहीं है, अगर उसे हम जबरदस्ती फुल सूट में डाल देंगे तो वो क्या खुद इतना कॉन्फिडेंट फील करेगा दैट वो लोगों को अपनी स्पीच में या अपने आसपास अपने एक्शंस में बांध सके। सो आपके जो कपड़े होते हैं, अगेन आपकी खुद की पर्सनालिटी और हुँ, आपके जॉब को साथ में लाए बांध सके ऐसे होने चाहिए, राइट? कपड़े ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव तो होने चाहिए। सो डिपेंडिंग आप कहाँ से हैं, आपका क्या जॉब है, क्या रोल है, आपका क्या पर्सनैलिटी है, क्या बजट है, उसके हिसाब से भी कपड़े होते हैं। सो ऑफ कोर्स सारे पॉलिटिशियंस की तो टीम्स होती हैं जो उन्हें बताती हैं कि इस जगह आपको ये पहन के जाना चाहिए, राइट? अब जिनकी टीम्स नहीं हैं, जैसे आपने कहा कि काफ़ी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं या सीएक्सओ लेवल के लोग होते हैं, जो कई बार काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में या कॉन्फ्रेंसेस में सही कपड़ों में नहीं आते हैं। या तो उनके पास लिए हुए नहीं होते हैं या उस वक़्त उनके पास नहीं होते हैं। जी। तो एज़ एन इंडिविजुअल आपको समझना होगा कि आपका जॉब कैसा है, आपका रूटीन कैसा है, आपको कहाँ इन कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी। एक बहुत बड़ी फ़ार्मा कंपनी के मेरे एक क्लाइंट रह चुके हैं, हू वाज़ एट अ वेरी हाई पोज़ीशन। अब होता ये था कि उनको उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का कभी भी फ़ोन आ जाता था कि भई आ जाओ, ये मीटिंग है या फलाना-फलाना यूएस से कोई डेलीगेट आया है, तो अभी आ जाओ। राइट? एंड ये बंदा क्लब में इवनिंग वॉक कर रहा होता था। अब वो बोल रहा है कि मैं ट्रैक पैंट पहन के, टी-शर्ट पहन के, पसीने वाले कपड़ों में अचानक उनके घर पे कैसे पहुँच जाऊँ? सो हमारा सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। उसके बाद से उनकी कार में हमेशा एक ब्लेज़र, एक एक राउंड नेक टी-शर्ट और एक ट्राउज़र होता था विद फॉर्मल शूज़। और ऑफ कोर्स वो क्लब आते थे तो उनके पास नहाने करने का तो सामान होता ही था। सो वी यूज्ड टू मेक श्योर दैट ये चीज़ें उनके पास कार में हमेशा हों कि कभी भी अगर ऐसा चांस आता है कि उन्हें इमीडिएटली भागना पड़े, तो वो कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल आई थिंक आज आपके और मेरा भी कॉमन है। हमें पता है कि आज की हमारी मीटिंग एक अलग दिशा में भी जा सकती है, राइट? सो दोनों ने कुछ तो तैयारी करी है। आई हैव माय चेंज ऑफ क्लोथ्स, आई हैव अ चेंज ऑफ फुटवियर, आई हैव सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव ब्रॉट दैट कैन हेल्प अस गेट इंटो द सेकंड रोल दैट वी आर प्लानिंग। सो little idea about where you are and what you're going to or what you'll be required to do is important to understand what you should wear that day or how you should prepare for it. एंड अगर नहीं ही समझ में आता है तो फिर ऐसे में मेरे जैसे इमेज कंसल्टेंट काम आते हैं। हम पूरा वार्डरोब बना के देते हैं लोगों को, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड कि ये आपके सूट्स हैं, ये आपके शर्ट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन ये है, इसके साथ ये फुटवेयर जाएगा, इसके साथ ये रुमाल जाएगा, इसके साथ ये टाई पिन जाएगा। सारी चीज़ें क्यूरेट करके रखी जाती हैं सो दैट अगर आप कहीं जाते हैं तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग एटलीस्ट कपड़ों के मामले में बहुत सिंपल हो जाता है। मुझे लगता है कि ये फीमेल्स या वुमेन्स के साथ में बहुत ना इनबिल्ड है। मैं अक्सर देखता हूँ व्हेन आई एम गेटिंग रेडी टू फॉर माय ऑफिस और मे बी एनी इवेंट, तो मेरी वाइफ अक्सर आके बोलती हैं कि ये जो आपने टी-शर्ट पहनी ना, इसकी जगह दूसरी नहीं पहन सकते थे आप? हुँ। तो वो मतलब कई बार वाइफ एक बार नहीं बार-बार वो बोलती है, फिर मैं बोलता हूँ मैं मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है कि मैं इन चीज़ों को उतना एस्थेटिक को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता हूँ बिकॉज़ ऑफ सम अदर इमरजेंसीज़ की दूसरी चीज़ें होती हैं।
लेकिन वो हमेशा रोकती है और टोकती है कि आप इसके साथ में ये टी-शर्ट पहनिए। तो मैंने क्या किया, वो ये सारा डिपार्टमेंट वाइफ को दे दिया है। और जब भी तैयार होता हूँ तो पूछता हूँ, यार मैं ठीक लग रहा हूँ? हाँ। ये ऑफिस के लिए फिर वो बताती है कि हाँ, नहीं ये शर्ट ठीक लग रहा है, इसके बारे में ये ब्लेज़र होना चाहिए इसके ऊपर, या ओवरकोट ये होना चाहिए, जैकेट ये पहनना चाहिए। और मेरे को लगता है कि फीमेल्स के साथ में ये शायद इनबिल्ट ज़्यादा है। आई थिंक एस्थेटिकली कलर सेंस शायद लड़कियों में, शायद में पक्का लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आसान होता है हमारे लिए ये करना। अच्छा, इसको है ना एक बहुत इंटरेस्टिंगली काफ़ी, जैसे आपने बीच में स्टीव जॉब्स का या मार्क ज़ुकरबर्ग का एग्ज़ाम्पल दिया था। जी। अब जिनको ये सेंस नहीं है, राइट, या जो इसके बारे में डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहते हैं। एक लेडी भी हैं जो मेरी क्लाइंट हैं, वो नहीं चाहती हैं कि वो रोज़ नक्की करें कि इनको इसके साथ ये पहनना है, इसके साथ ये जूता, इसके साथ ये लिपस्टिक, इसके साथ ये बिक्री। तो उसके साथ तो हम लोग पूरे हफ्ते का वार्डरोब सेट कर देते हैं कि अगर आप सुबह में यहाँ जा रही हैं तो ये कपड़े पहन सकते हैं, शाम में आप थिएटर जाएँगी, थिएटर में अंधेरा होगा, फलाना होगा, या आप खुले में हैं तो आपके ऊपर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो अ लॉट ऑफ पीपल to just do away with this excessive decision making, right? Hire people like me, and a lot of times it's not just decision making. People are such perfectionists that they want to step out in the best possible manner. Now, because kabhi wo aesthetic khud ne develop nahi kiya, like I was telling you, right? The person who I said is at a CXO level in a pharma company, he did not care about it, right? But he was told subsequently that now at this position you need to care about it. Yeah. पर because आज तक कभी किया ही नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा, तो that is why he had to hire somebody like me. Yeah. And quite interestingly मैं उनके साथ तो कभी शॉपिंग नहीं गई, मैं उनकी वाइफ के साथ लगातार शॉपिंग गई, बिकॉज हम दोनों लड़कियां मिलके डिसाइड करते थे कि ये चीजें उन्हें ऐसे पहननी चाहिए. बहुत बढ़िया। So like I said, he did not want to get into that decision making. I educated his wife and his wife now manages his wardrobe. वेरी नाइस। तो आपने उनकी वाइफ को अपना को कॉपी बना दिया है कि वन शी इज नॉट टी-शर्ट। शेयर इमेज के या कपड़ों के ना थोड़े बेसिक रूल्स होते हैं, वो रूल्स आप किसी को समझा दीजिए तो काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं वेरी नाइस। ज्यादातर. कुछ थोड़े बहुत रूल आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल. सो राइट. सो सिंपल रूल्स ये हैं दैट आप पहले तो एक थोड़ा कलर एनालिसिस करिए, समझिए कि आपका स्किन के ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, जी। राइट. बिल्ड योर वार्डरोब. इट कैन नॉट बी शॉप्ड इन अ डे. एक दिन में कभी पूरे वार्डरोब की शॉपिंग मैं तो नहीं करती, मैं अपने क्लाइंट्स को भी मना करती हूँ. इट्स समथिंग दैट यू बिल्ड ओवर टाइम, राइट. क्या चीजें आपको पहनने में मजा आता है, अच्छी लगती हैं आप पे, उसको आप थोड़ा स्टॉक करिए. या सो सबसे पहले आपके ऊपर क्या कलर है वो आपको पता होना चाहिए. दूसरा, आपके बॉडी के ऊपर क्या अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ सिलुएट, राइट. अगर आप बहुत टॉल हैं तो आपके ऊपर कैसे ट्राउजर्स हैं, कैसे शर्ट्स अच्छे लगेंगे. अगर कोई लेडी है या औरत है और वो बहुत शॉर्ट है तो उसके ऊपर कैसे सिलुएट अच्छे रहेंगे, क्या चीज उसे लेंथ देगी. अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपको फिर मेरी शायद इतनी जरूरत ना पड़े, आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कई काफी हद तक in terms of where to buy from and what to buy from. My third thing would be identify the brands that serve you. आप एक ही ब्रांड में से लाइफ टाइम तक शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ब्रांड का एस्थेटिक और आपका एज, आपका रोल एंड गोल इन लाइफ, आपका बॉडी, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं. सो ऑफ कोर्स दैट ब्रांड विल ऑल्सो हैव टू कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू योर एज एंड योर अदर रोल्स. So skin, your color, personal color. Second is the silhouette that looks good on you, and third is the brands that you can ideally shop from, which are ideal for you. वेरी नाइस। तो अगर कोई डार्क कलर वाला है मेरे जैसा, मतलब मैं डार्क बोलूं या थोड़ा सा, मतलब थोड़ा Medium कम डार्क कैसे हैं? बोल हाँ सकते जी. हैं, कौन से कलर फेवर करेंगे? और कोई जैसे मान लीजिए आपके जैसा फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला है तो उसके साथ में कौन से कलर जाने चाहिए? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारी ऑडियंस के पास दोनों तरह के कलर्स हैं, राइट. जिसे हम कहते हैं वार्म कलर, विच इज योर कलर पैलेट, एंड कूल कलर, विच इज ऑलमोस्ट माई कलर पैलेट, राइट. टेक्निकली आई एम अ न्यूट्रल, बट देन फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स से न्यूट्रल मतलब? न्यूट्रल मतलब आपकी जो वेन है, अगर आप अपना वेन देखें तो आपको दिखाई देगा दैट वो आपका वेन ग्रीन कलर का है, राइट. पर जो लोग बहुत फेयर होते हैं उनका जो वेन है वो ग्रीन एंड पर्पल या पर्पल एंड ब्लू होता है. सो मेरे वेन्स अगर आप देखें तो यू विल सी अ लॉट ऑफ पर्पल हियर एंड हियर, राइट, जो आप में शायद नहीं होंगे. सो आई एम अ न्यूट्रल टोन. मैं ऐसे सारे रंग पहन सकती हूँ विच आर ब्राइटर, विच आर मोर सैचुरेटेड, इंटेंस कलर्स, राइट. हाउएवर
योर स्किन, राइट? अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स पहनते हैं, तो वो कलर्स आपके स्किन को और ज़्यादा डार्क और पैची बना सकते हैं। Ideally, you should be wearing colors which are suitable to warm skin tone, which is earthen tone. What you're wearing today, the shirt is an earthen or a jewel tone, which looks good on warm skin tones also. And what I'm wearing today, for benefit of this podcast also, I wanted to wear a color which was more suitable to a cool color tone, which is my color. So it's more fresh, it's more bright. तो इसमें मेरी स्किन शायद और ज्यादा अच्छी लगती है। अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप मरून पहनूं तो वो कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मेरी स्किन को और ड्रॉ करता है डाउन। सो अगर हमें अपना कलर पैलेट पता है तो इट बिकम्स अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कौन से ब्रांड में या कौन से कलर्स मुझे आइडियली लेने चाहिए। एक और एग्जांपल इफ आई कैन क्विकली गिव, आपका जो कलर टोन है उसके हिसाब से सी वाइट दो रंग के होते हैं, राइट? देयर इज वन ब्लू वाइट and one is which is slightly a more grayish white. So I would say that आपके color tone के लिए you should ideally choose a white which has a little more yellow or gray towards it, right? My white can be a fresh blue white also. So आपके लिए जो हम इंडियन टर्म्स में कहते हैं ऑफ वाइट, सो ऑफ वाइट शर्ट्स आपके ऊपर ज्यादा अच्छी लगेंगी, whereas मेरे ऊपर ऑफ वाइट मुझे और डल कर देता है, मुझे पहननी पड़ती है थोड़ी ज्यादा ब्राइटर व्हाइट और ब्लू और व्हाइट शर्ट्स। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आ रहा है। तो जब शादी करने के लिए जब आप देखते हैं, तो कपल देखते हैं, तो ये इसमें भी कुछ होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हस्बैंड शुड लुक लाइक दिस, वाइफ शुड लुक लाइक दिस, बिकॉज़ गर्ल्स आर वेरी मच पर्टिकुलर फॉर दिस। बिल्कुल। अभी तो डेफिनेटली हर कोई बहुत पर्टिकुलर हो गया है। कुछ एक शादी जो मैंने अभी पिछले साल एक कोऑर्डिनेट करी थी लोगों के लिए, तो उन्हें चाहिए था दैट फोटोग्राफ में लड़कियों का सारा फैमिली एक अलग तरह के कलर टोन में हो और लड़कों के साइड का फैमिली पूरा एक अलग टोन में हो। तो पूरे शादी में हमने इंश्योर करा था दैट हर पिक्चर में, राइट, एवरीवन इज वेयरिंग अ डिफरेंट कलर बट फ्रॉम द सेम फैमिली। और उनको दे वर वेरी पर्टिकुलर कि हमको तो ऐसा ही चाहिए, और उनको वो टिपिकल ब्लू और पिंक नहीं करना था। दे जस्ट वांटेड टू गो फॉर वेरी डिफरेंट कलर्स फॉर द गर्ल्स टोन, बिकॉज गर्ल का पूरा साइड जो था काफी फेयर था, लड़कों के साइड वाला जो था वो लोग मीडियम फेयर थे। सो अगेन चूजिंग द राइट कलर फॉर देम फॉर दिस साइड, बिकॉज फोटोग्राफ्स उनको पर्टिकुलरली और बहुत अच्छे चाहिए थे कि हमारे हर पिक्चर में हमें अलग अलग हर फैमिली मेंबर अलग कलर में दिखना चाहिए। एट द सेम टाइम इट शुड लुक कोहेसिव, ऐसा ना लगे दैट हर कोई कुछ भी पहन के आ गया है। सो या विमेन आर पर्टिकुलर, पीपल आर पर्टिकुलर, फोटोग्राफर्स आर पर्टिकुलर। अब तो लोग फोटोग्राफर्स ही इतने महंगे महंगे रखते हैं दैट ऑफ कोर्स दे वांट द बेस्ट रिजल्ट्स। या इंटरेस्टिंग। अब ये जो कॉर्पोरेट्स में जो स्पेशली बहुत सारी जो वुमन हैं जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं, ऑफ लेट आई नोटिस कोई मे नॉट बी ऑन द वेरी टॉप लीडरशिप पोजीशन, बट उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, और कहीं कहीं पर बहुत टॉप हायर लेवल पे पोजीशंस पे वुमन लीडर होती हैं, लेकिन ड्रेसिंग सेंस में पता लग रहा है, मतलब आप देख के समझ जाओगे कि यार कुछ भी है यार, मतलब सॉरी टू से, मतलब सॉरी टू ऑल द द लीडर्स, आप पोजीशन आपके पास में है, बट रियली योर अटायर इज नॉट सिंक्रोनाइजिंग विद दैट पोजीशन, जस्टिफिकेशन जो होता है ना वो नहीं करती है। हाँ। तो उसमें कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि बिकॉज कि कॉर्पोरेट में व्हेन यू आर attending a big corporate meeting and you are at the leadership position and you have people those are reporting and looking at you as an ideal person. जी। So, again, why should people on leadership positions dress better? Because in an organization, culture or uh, their want to be excellent, right? This culture of excellence, of a certain impression, image, of looking powerful, right? So this is something that should trickle from top down, not from bottom up, right? आपका मैनेजिंग जो CXO लेवल है या जो मैनेजमेंट लेवल है वो कितने अच्छे कपड़े पहनता है, उससे पता चलता है कि वो लोग आगे उनका काम कैसा है, एंड देन वो कैसा अपने आसपास का कल्चर या ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, राइट? विच इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट एज अ मैनेजर आप अच्छे कपड़े पहने। हाँ, ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, स्टीव जॉब्स हैं, अगर आप इतने बड़े जीनियस हैं, आपके पास कुछ सोचने का और समय ही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी पहनिए चलेगा, बिकॉज आपने इंटेलेक्चुअली खुद को इतना अच्छा प्रूव कर दिया है दैट ये कपड़ों की चीजें डोंट मैटर, राइट? However, if you are somebody who wants to climb the corporate ladder, there is a saying that image consultants use a lot. You always say, dress for the job you want to have.
आप जैसी जॉब चाहते हैं आपको वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, तब आपको लोग उस जॉब में एनविजन कर पाएंगे और फिर आपको शायद आगे जाकर के उतना एलिवेशन मिलेगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू ड्रेस अ सर्टेन वे, बट अगेन किसी को कॉपी करना और जबरदस्ती सूट में बैठना ये मेरे भी एस्थेटिक के बाहर है। और मैं किसी को भी कहती हूँ कि यू वेयर व्हाट यू वांट टू और व्हाट would look good on your body type and make it suitable to the job that you are in, right? So I myself, in trainings and a lot of meetings, I wear salwar kameezes. It's absolutely fine, right? आज भी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, I'm wearing a sleeveless because of course our podcast is about personal image or personality. But even in corporates, look at the position that you are in. एक basic high neck or a collared, shirt or a waistcoat or a jacket, if that is something that people around you are wearing, please wear that, because you will then become a part of the machinery, right? And not be this sore thumb or this thing that sticks out. And आपके कपड़ों की वजह से अगर आपको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये तो कोई चीज है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। दिस इज बियॉन्ड ऑफिस पॉलिटिक्स, इट्स बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, राइट? इट्स समथिंग दैट इज सो कंट्रोलेबल। इन्वेस्ट इन गुड pieces, invest in good clothes, and see people will start seeing you at better position. अभी का जो यंगर क्राउड है वो ऑलरेडी ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रहा है बिकॉज उनकी इन्फ्लुएंसेस ऐसे हैं। पिंटरेस्ट पर होते हैं, इंस्टाग्राम पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, इमेज के ग्रुप, वीडियोस, ग्रूमिंग के वीडियोस, दे आर डाइम अ डजन, हर जगह हैं। तो अगर इतना नॉलेज अवेलेबल है और इसके बावजूद अगर आप अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं या खुद का ग्रूमिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, राइट, देन आई थिंक यू नीड टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर ओन इमेज, एंड देन people will begin to invest in you. बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, है ना? और आंख बंद करने से दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता। देयर आर पीपल दोज आर नोटिसिंग यू एवरी टाइम। एक और यहाँ पर एक छोटा सा न्यूआंस में शेयर करना चाहूंगा। अगर लीडरशिप पोजीशन पे टॉप में इफ समबडी हु इज वेरी मच पर्टिकुलर, तो वो अपने जो लोग हैं उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर ऊपर में वहाँ सेंस नहीं है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल पूरा का पूरा कुछ भी पहन करके आ रहे हैं और कुछ भी चल रहा है, तो फिर वो नीचे वाले लोगों से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते। To build a good organization, this is completely, when you are building an organization, shaping something, for the future, तो जो फ्यूचरिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इफ एनी इन द इंडस्ट्री, एनी ऑफ द इंडस्ट्री, इफ यू सी जो लीडिंग इंडस्ट्रीज के जो कंपनीज होते हैं, वहां पर यू विल सी द पैटर्न, राइट, एंड दिस पैटर्न रियली हेल्प्स टू बिल्ड दैट ब्रांड फॉर द लॉन्ग टर्म। कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर सिस्टम प्रोसेसेस थोड़े से डिसिप्लिन फॉलो होते हैं, तो वहां पर आपको लगेगा दैट यूनिफॉर्मिटी इज देयर, राइट, दैट पैटर्न इज देयर, पीपल आर अलाइन। तो एक ऑफिस है जहां पर कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी पहन के आ रहा है, कोई सैंडल पहने हुए, कोई चप्पल पहन के आ रहा है, कोई शूज पहन के आ रहा है, कोई कुर्ता पहन के आ रहा है, कोई बियर्ड बहुत बड़ी बड़ी रख करके चला आ रहा है, किसी के बालों में छोटी पोनी वगैरह बनी हुई है। और आप देखोगे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड क्रिएचर्स, यू विल सी, बट इन द गुड ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप जाते हैं, वहां पर आपको कुछ पैटर्न्स दिखते हैं, वहां पर आपको लोग बहुत सिस्टमेटिक और बड़े ओरिएंटेड दिखते हैं, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर, उसका एक अलग ही इंप्रेशन और हम उसे प्रोफेशनल कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं। राइट। तो संध्या जी, अब ये बताइए क्या नहीं करना चाहिए? अभी तक हमने बात करी कि क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। तो फॉर अ मैन एंड वुमन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, व्हाट should not do, what should not be, people should not wear? सो आई थिंक कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा चीजें जिनसे लोगों को परेशानी होती है इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग इज नॉट वेयरिंग द नाइस स्ट्रक्चर्ड आउटफिट, राइट? स्ट्रक्चर का मतलब है कोई भी चीज जिसका कॉलर है, राइट, या जिसके शोल्डर डिफाइंड है, राइट, एंड जिसका प्लैकेट है या बटन्स होते हैं, तो उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर ये आउटफिट्स आप पहनते हैं, आपका कुर्ता पजामा हो, आपका पैंट सूट हो, तो ये जो स्ट्रक्चर देता है वो बहुत फॉर्मलनेस ऐड करता है। हम जब टी शर्ट पहनते हैं या लूज शेयर कुर्ते पहनते हैं या ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमारे ऊपर बिल्कुल गिरते हैं, राइट, वो हमें होल्ड नहीं करते, वो शरीर को होल्ड नहीं करते, वो शरीर के ऊपर लगता है किसी ने फेंक दिए हैं। तो ऐसे कपड़े डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए बिकॉज एक तो फंक्शनल नहीं है। ऑफिस में जब आप कपड़े पहनते हैं तो आपके पास मूवमेंट का ईज होना चाहिए, आप काम कर सके इतना आपके कपड़ों में ईज होनी चाहिए, राइट? सो ऐसे कपड़े पहने।
कलर्स का ध्यान रखें. देयर आर क्लियर फॉर्मल एंड कैजुअल कलर्स. प्लीज वेयर फॉर्मल कलर्स इन योर ऑफिस. एंड आई ऑलवेज से इट इज बेटर टू बी ओवर ड्रेस्ड देन अंडर ड्रेस्ड. ओ सो अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आज भाई मैं टी शर्ट पहनूं या शर्ट पहनूं, तो आप शर्ट पहनिए. ओके. अगर आपको लगता है आज तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो शर्ट पहनो या जैकेट डालना चाहिए तो प्लीज जैकेट डालिए हमें. अरे हो Right? So when in doubt, try to dress higher than lower. Is something that I always go by, right? लड़कियों के लिए मैं कहूँगी that because लड़कियाँ स्पेशली इंडिया में it's such a beautiful thing. I absolutely love that लड़कियों के पास इंडिया में कपड़ों का बहुत चॉइसेस है, राइट. हम लोग सिर्फ पैंट सूट नहीं पहनते, सलवार कमीज भी पहन सकते हैं, राइट. अब तो साड़ियाँ भी इतनी अच्छी फॉर्मल लुकिंग साड़ियाँ आ गई हैं दैट वो भी बहुत अच्छे से ऑफिस में पहनी जाती हैं, राइट. आई एम ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ women wearing jackets or blazers with sarees, which also is another thing that we brought in. So ऐसा कुछ आप करिए जिससे आप थोड़ा और पुट टुगेदर लगें. बड़े बड़े प्रिंट्स, लाउड कलर्स ये ऑफिस में नहीं होने चाहिए. शेयर फैब्रिक्स ऑफिस में नहीं होने चाहिए. आप अपने काम पे ध्यान रख सके ऐसा आपका अटायर और ग्रूमिंग होना चाहिए. बहुत बढ़िया. तो वुमेन्स के बारे में स्पेशली है कि वाइफ हमेशा बोलती है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं और वार्डरोब पूरी भरी हुई है. वार्डरोब में रखने की जगह नहीं होती है. तो ये दिस इज अ कॉमन सेइंग, तो बहुत अच्छे से बताया आपने कि ये इस तरीके से जो मैन एंड वुमेन का जो है. चीज इफ आई मी ऐड, जिनको भी लगता है कि मेरे पास बहुत कपड़े हैं और पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो प्लीज आप देखिए, आप शायद अपने कबाट में से 50% चीजें नहीं पहन रही हैं, राइट. अगर ऐसी चीजें, मेरा खुद का थंब रूल है कि जो मैंने 2 साल में नहीं पहना है या मिस नहीं किया है वो शायद मैं आगे नहीं पहनूंगी, वो मैं किसी और को दे दूं तो शायद उसका ज्यादा काम आएगा. बहुत सो बढ़िया. डोंट किल the clothes in your cupboard. Wardrobe. Give them a new life. Donate them. Give them away. बहुत सारी जगहों पे आप सेकंड्स में अब उनको बेच सकते हैं, तो ये करिए. कबाड़ को या अपने वार्डरोब को क्लेंस करते रहिए. अगर जगह होगी तो आप उसमें कुछ भर पाएंगे. भरे हुए कबाड़ में आप क्या भरेंगे? आपने बहुत सारे हस्बैंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. या आप बोलिए वाइफ को कि जो देखो उसमें ढूंढ के क्या कब से नहीं पहना है. कई हस्बैंड तो कंप्लेन करेंगे मैडम, इसका मतलब और वाइफ शॉपिंग करने जाएंगी, राइट, निकाल निकाल के. तो मैं आपको बताता हूँ. दो तरफा है. मेरी वाइफ के पास में मतलब इतनी सारी साड़ीज का कलेक्शन है और उस कलेक्शन के बावजूद भी वो हमेशा हर बार मतलब पहनती भी भले ही नहीं है, लेकिन वो कब होना चाहिए, वार्डरोब में होना चाहिए वो साड़ियाँ तो हैं. तो मैं अक्सर देखता हूँ कि वो अगर मान लो पिंक कलर है तो पिंक में भी वो ये वाला पिंक कलर डार्क है, वो वाला पिंक कलर लाइट है, तो वो लाइट वाला नहीं है, डार्क वाला है मेरे पास में, तो अब लाइट वाला लेना है. हाँ. है ना. तो ये पता नहीं इतनी चॉइसेस, ये कुछ कुछ एनाटॉमी या कुछ इस तरीके का कुछ है चक्कर. पर्सनली आप बताइए, आपके साथ ऐसा होता है कभी हस्बैंड के साथ जाती हैं तो इस तरीके से कभी ये बिल्कुल नहीं होता, या आप बिल्कुल अलग करके रखती है कि नहीं? नहीं, मेरे कपड़े लगभग अलग ही होते हैं कि जो मैं बाहर पहन सकती हूँ, जो शादियों में पहन सकती हूँ और जो मैं कॉर्पोरेट में पहन सकती हूँ. और कई बार ऐसे कपड़े होते हैं जो मैं अदला बदली कर देती हूँ अंदर बाहर, पर देन ज्यादा चांस नहीं मिलता बिकॉज सेग्रीगेशन काफी क्लियर है. एक चीज आई डेफिनेटली टेल पीपल दैट अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं अपने वार्डरोब को देख के, आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट, तो टेक अ क्विक स्कैन, राइट. आप देखिए कुछ चीजें उसके अंदर डेफिनेटली हैं जो आप नहीं पहनते हैं, जो आपके ऊपर अब सूट नहीं करते हैं, या बहुत टाइट हो चुके हैं, या बहुत लूज हो चुके हैं, या फैशन में नहीं है. ऐसी चीजों को निकाल के साइड में करिए. अब आपके वार्डरोब को फिर से एक बार देखिए. अब इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त आप मिस कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राउजर है जिसका टॉप थोड़ा जल गया था या पुराना हो गया है, तो आपने उसको जाने दिया, पर वो ट्राउजर अभी भी है. वो आपको पसंद है तो रखिए, नहीं पसंद है तो उसे भी जाने दीजिए, राइट. अगर पसंद है तो उसके ऊपर कौन सी एग्जिस्टिंग चीजें हैं जो आप पहन सकते हैं. अगर कुछ भी नहीं है तो अगेन, इज द ट्राउजर वर्थ इन्वेस्टिंग इन? इफ नॉट, अगर ट्राउजर की ही अब कीमत ज्यादा नहीं है तो फिर जाने दीजिए, राइट. इफ इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग देन मे बी बाय समथिंग फॉर इट. सो इस तरह सोच के जब आप कुछ खरीदेंगे ना तो बहुत कम मिसेज होंगे, ज्यादा हिट्स होंगी, राइट. एट द सेम टाइम आपके वार्डरोब में से चीजें गिर नहीं रही होंगी, आपका वार्डरोब थोड़ा मैनेज्ड होगा. काफी क्लाइंट्स मेरे ये भी कंप्लेन करते हैं दैट मैम हमारे पास वार्डरोब में इतनी जगह ही नहीं है कि हम ऐसे सीजन के हिसाब से या अपने इवेंट्स के हिसाब से कपड़े, तो सारी चीजें एक साथ भरी हुई होती हैं. सो अगेन, एटलीस्ट हम लोग कुछ चीजें जो बार बार पहनते हैं उसे आप नीचे रखें. जो चीजें हम नहीं पहन रहे हैं पर सपोज हैंडलूम चीजें हैं, मेरी मदर की साड़ी अगर मैंने संभाल के रखी है
तो उसे मैं अच्छे से साड़ी के उसमें पैक करके लॉफ्ट में रख सकती हूँ। शायद मैं वो यूजुअली पहनती नहीं, तो उसको नीचे रखने के मेन वार्डरोब में रखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थोड़ा नेचुरल ऑर्गेनाइज़ेशन भी आपको करना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ें मैं पहन रही हूँ और नहीं पहन रही हूँ, क्या ऊपर जा सकता है, क्या मेन में रह सकता है। ये बहुत अच्छा है। अब एक और इफ आई मे ऐड दिस, कौन से कपड़े आप समर में पहनते हैं, कौन से कपड़े आप विंटर में पहनते हैं, ये तो हम करते ही हैं। सारे स्वेटर्स वगैरह ऊपर डाल देते हैं, बिल्कुल, ये तो होता ही है नॉर्मली। राइट? इस तरह से आप फॉर्मल, इनफॉर्मल, ड्रेसी, नॉन ड्रेसी कपड़ों में भी इसको आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है जी। कि ये तो आपने फॉर्मल सेटअप में बताया मैन एंड वुमन के लिए, लेकिन स्पेशली जब आप इवेंट में जाते हैं, फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, मैरिजेस अटेंड करने जाते हैं, बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, इवनिंग पार्टीज में जाते हैं, वहाँ पर बताइए क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए मैन एंड वुमन दोनों के लिए? हाँ, सो ओकेजन, राइट? सो जैसे मैंने कहा कि आपका आउटफिट जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, आपके पर्सनैलिटी हिसाब से होना चाहिए। ये ऑथेंटिक का मतलब क्या हुआ? ऑथेंटिक मतलब आप कैसे हैं, कहाँ से हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप थोड़े इंट्रोवर्ट स्टाइल के हैं, राइट? आप थोड़े शाय हैं, बहुत लाउड आपका पर्सनैलिटी नहीं है, आपने आज तक ऐसे कोई कपड़े नहीं पहने हैं जो बहुत लाउड हो, आई कैचिंग हो। आप चाहते भी नहीं हैं कि रूम में अगर आप अंदर आएँ तो सब पहले आपको देखें। आप थोड़े शाय हैं लेट्स से, और आपके ऊपर अगर मैं ऐसे कपड़े डाल दूँ या ऐसा एक्सेसरी डाल दूँ जो अंदर जाते ही 10 लोग नोटिस करें, राइट? तो आप ऑटोमैटिकली दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक टू यू एज़ अ पर्सन। सो आप उसमें बहुत अंडर कॉन्फिडेंट और विजिबल फील करेंगे, राइट? सो योर आउटफिट हैज़ टू बी ट्रू एंड ऑथेंटिक टू योर इनर पर्सनैलिटी आल्सो, वेरी नाइस। राइट? सो ऑथेंटिक होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आप कहाँ हैं, सुबह में, शाम में हैं, किसके साथ हैं। सो जो हम लोग 5 डब्ल्यूज़ कहते हैं, हू, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, राइट? इसको फॉलो करिए। आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्यों हैं, किस वक़्त हैं, राइट? और आपका वहाँ पे काम क्या है, ये सोच के अगर आप कपड़े पहनते हैं, तो चांसेस हैं दैट यू विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस। एंड खास तो ये सोचिए कि और लोग वहाँ पे जो होंगे, उन्होंने क्या पहना होगा। बहुत बढ़िया। आपको उस लेवल तक तो जाना चाहिए। तो ये जो आपने ऑथेंटिक का जो मीनिंग समझाया जी। इट वाज रियली वेरी So 4 Yeah. A's: authentic, appropriate, attractive and affordable. So affordable is also very important. अगर आप ऐसे कपड़े खरीदते हैं जो बहुत महंगे हैं, फॉर एग्जांपल सीके का अगर आप शर्ट खरीदते हैं कैल्विन क्लाइन का, 7-8 हज़ार का तो एक शर्ट आता है। अब आपका अगर बजट ही 7-8 हज़ार का है तो आप एक शर्ट खरीदेंगे, वो आप कितनी बार पहनेंगे? इससे अच्छा अगर आप कोई ऐसे ब्रांड में जाते हैं जहाँ आपको 1500-1700 के शर्ट्स मिल जाते हैं, पीटर इंग्लैंड है, फ्रैंक जेफरसन है, राइट? 1200-1500 के, 2000 के, अगर तो आप 4 शर्ट्स पहन सकते हैं, राइट? तो इसको आप काफ़ी कॉम्बिनेशंस में भी पहन सकते हैं। तो दिस इज़ द अफोर्डेबल एलिमेंट ऑफ ड्रेसिंग कोड। Wear clothes that you can afford and create combinations from to give you a better, more wider wardrobe. ठीक है, वेरी गुड। लास्ट सेकंड लास्ट था क्वेश्चन पिछला वाला। Right? लास्ट क्वेश्चन, ये एज कितनी इंपॉर्टेंट होती है इसमें? बिकॉज एज इन व्हेन यू एडवांस इन द एज, स्पेशली 45 to 55, 55 to 65, if you would like to suggest something. Honestly, जिस तरह अब नीना गुप्ता दिखाई देती हैं, मुझे तो लगता है एज इज इमटेरियल, राइट? इट इज हु यू आर दैट शुड शाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ ओल्ड यू आर। वो आपका पर्सनल स्टाइल है। आप क्वर्की एंड ड्रामेटिक ड्रेसर हो सकते हो, दैट यू कैन बी इवन एट 80। यू डोंट हैव टू बी 15 टू बी दैट, राइट? वैसे भी पंकज जी, अपना स्टाइल और कंफर्ट ढूंढते ढूंढते ही लोगों को सालों लग जाते हैं। एज निकल जाता अब जब उसमें हम एज लगा ले कि 40 के बाद तो आप ऐसा नहीं पहन सकेंगे, तो ये तो बहुत लिमिटेड हो जाता है। सो एज, एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल एंड यू फील अप्रोप्रिएट एंड पावरफुल इन व्हाट यू आर वेयरिंग, एज इज जस्ट अ नंबर देन। अमिताभ बच्चन इज आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल फॉर ही स्टिल वो 3 पीस में अभी भी मतलब ही इज हैविंग दैट काइंड ऑफ द ग्लो एंड द ग्लैमर. Absolutely. But you will see that Amitabh Bachchan का पहले का dressing, and as he has aged, dressing has changed, right? That cravat to hide the wrinkles around the neck, right? Or ensuring that he is wearing a 2-button or a double-breasted blazer so that the stomach stays inwards, right? तो ये सारी जो ट्रिक्स हैं, ये आई थिंक एज के साथ अप्लाई करनी चाहिए, राइट? तो आप उसको then you will look beautiful also in what you're wearing. वेरी नाइस. तो अगर लोगों को फॉलो करना हो 3-4 पर्सनालिटीज, वुड यू लाइक टू रिकमेंड कि आप उनको फॉलो कर सकते हैं?
3-4 पर्सनैलिटीज़ या 2-3 मैन और वुमन दोनों में अगर आप बता सकें? See, men में personally, I really like how Ayushmann Khurrana dresses up. He always dresses up smart and sharp, right? Okay. He's casual. At the same time, he's very, dapper when he wants to look. So I love his style. Ranbir Kapoor. I myself am a classic dresser. So मुझे रणबीर कपूर का dressing बहुत पसंद है. I do find Ranveer Singh interesting, but interesting is what I'll call him. He's very nice. He loves every rule in the fashion book and I absolutely love that. So अगर आपका स्टाइल ड्रामेटिक है तो आप उनको भी देख सकते हैं. So really depends आपका क्या स्टाइल है, आप क्या करते हैं लाइफ में, राइट? एंड देन यू कैन कैच समबडी हु यू कैन फॉलो. सो फॉर मी अनुष्का शर्मा, आई लव हाउ शी ड्रेसेस. आई एम समबडी हु believes in comfort and colors that look good on me, and I am not a very what do you say layered dresser. So मुझे बहुत सारे जैकेट्स और ये और बड़ा ज्वेलरी, so मैं ड्रामेटिक नहीं हूँ ड्रेसिंग में. तो ऑफ कोर्स मेरे इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो अदिति राव हैदरी हैं या अनुष्का शर्मा हैं. आई लव ऑल्सो हाउ दीपिका पादुकोण wears, I am a tall person and I love how Deepika Padukone carries her height. So those are a few people that I really follow. Wonderful. So thank you so much for sharing all the learning nuggets. I am sure that our viewers will get benefit out of it. So I would request each one of them to please take care of your dressing sense and build your entire image wherever you are. And self-branding is everything in today's era. Personal branding is Personal very branding is important. very, very important. Absolutely. So I would request all the viewers to please keep following our channel and subscribe to this channel for such an interesting podcast. Sandhya ji, thank you so much for coming to this podcast. Absolutely, my pleasure. And मुझे बहुत मजा आया. It's an area that I'm passionate about. And इसके बारे में जितनी मैं बात करती हूँ उतना मेरा खुद का रिविजन होता रहता है और मेरा खुद का I believe that my own intelligence about this area also grows. So thank you for giving me the opportunity. Thank you.